Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today, we'll have the Hindu analysis dated 8th September 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that Piyush Goyal is Sherpa for G20 summit. Sherpa is you can consider as a representative or the person who represents our country. Okay, so the government has appointed Union Minister for Commerce and Industries Piyush Goyal as a Sherpa for G20 meet, replacing former Union Minister Suresh Prabhu. The development comes a little over a month before the next summit scheduled at the end of October in Rome. Now, from this article, we'll see what is G20, the working of G20 or what are the country members. Then we'll see about the summit which will happen in Rome and its current functioning, its current situation. So when it comes to G20, it is basically a group of 20 countries or group of 20, out of which 19 are proper countries. One is the European Union with, we can say, representative of IMF, that is International Monetary Fund, and World Bank. So G20 is a collection of 19 countries with European Union and representative of IMF plus World Bank. So we can say it is an informal group. It is not a formal group, but an informal group which comprises of the world's country. Now it also states the countries whose population is two-thirds of the world total countries, and total world's population is two-thirds. Then 85% of gross domestic product, GDP of total this countries comprises of 85%. Then 80% of the global investment, 80% of the global investment of this G20 country, and 75% of the global trade. So the country comprises, all the G20 country comprises of the two-third population, 85% of GDP, 80% of global investment, and 75% of global trade. Now it comes to the countries which are member of this G20. सो कंट्री 20, सो एक सो हमारा यूरोपियन यूनियन हो जाता है, उसको छोड़ के अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दैट इज़ साउथ कोरिया, देन मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम, USA, and European Union. So these are the 20 countries of G20 or group of 20. Now we'll see about the current, why was it in news. Currently, if we'll say in this pandemic situation, they will held a meeting on in October, representing the topic of, we can say, is the new global index. New global index consists of four pillars. This is the topic for this year's discussion. It consists of four pillars. Now, what are the four pillars? The very first one is talent, technology, then transparency, and trusteeship. Trusteeship towards planet. Okay? And key, if we see about the key point. So the summit is scheduled to held at Rome, but the hosting country this year is Saudi Arabia. Okay. Now we'll see about this four points. What does this 4 point consist of? If we speak of talent, it is a shift to a multi-skill or reskilling of the capital and finance to create a vast human टैलेंट पुल. ठीक है, जिसमें कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें टैलेंट को लेके, तो ये स्कीम है जब विच इज़ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन. ये क्या है? इट इज़ बेसिकली टू क्रिएट अ ह्यूमन टैलेंट पुल, जिसमें लोगों के जो टैलेंट्स हैं उनको मौका मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए. देन उसके बाद प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम. It is also an element, or it is also a scheme to provide programs or opportunity to the children to so that they can improve or improvise, enhance their talent skills.
देन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ, सो इंश्योरिंग दैट टेक्नोलॉजी रीचेज ऑल द सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एंड द वैल्यू ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी मेजर्ड बाय द बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, कितने परसेंट तक लोगों को वो बेनिफिट कर रहा है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूँ अगर टेक्नोलॉजी को लेके, तो हमारा सबसे बेस्ट है DI विच इज़ डिजिटल इंडिया, जो अभी भी प्रैक्टिस में है। गवर्नेंस कैंपेन्स हुए जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया की वर्किंग पहले से की जा रही है डिजिटल इंडिया के नाम पर। देन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज बेसिकली राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बेसिकली गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी रह सके कि उनकी वर्किंग की हुई क्या जा रही है। सो हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक है, जिसके हिसाब से कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ के हम बाकी सबका इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी एक तरह का है, सो दैट यू कैन प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस इन इंडिया। एंड द लास्ट वन इज ट्रस्टीशिप। सो ट्रस्टीशिप की अगर मैं बात करूँ, ट्रस्टीशिप वर्ल्ड शुड डील विद द एनवायरमेंट एंड नेचर एज अ ट्रस्टीशिप रादर दैन द ओनर एंड शुड इंस्पायर टूवर्ड्स द होलिस्टिक एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, बेसिकली आप जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसको कम करो, देन पर पर्सन जो कार्बन न्यूट्रलिटी लाने की कोशिश करें, देन पर पर्सन जो कार्बन फुटप्रिंट रिलीज़ हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें, सो दैट हमारा ग्रीन हाउस लार्जर पर्सपेक्टिव में कम हो सके एंड हमारा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं कंजर्व हो सके या बच सके। सो टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी इज़ फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट and trusteeship is for the environment so that you can have a healthy life forward. फ्यूचर की मीटिंग, ये जो मैंने बताई थी सऊदी अरेबिया की मीटिंग, दैट हैपेंड इन 2020। रीसेंट जो होने वाला है 2021 की मीटिंग जो है वो इटली में होगी, रोम। 2022 की मीटिंग इंडोनेशिया में होगी एंड 2023 की मीटिंग इंडिया में होने वाली है। सो अगले 4 साल की मीटिंग डेट्स फिक्स, मतलब कौन सी कंट्री होस्ट करेगा फिक्स हो चुकी है। 2020 में सऊदी अरेबिया ने किया था, 21 में इटली करेगा, देन 22 में इंडोनेशिया कर रहा है, 23 में इंडिया करेगा एंड 24 में ब्राज़ील। सो आगे के समिट्स जो हैं वो हम बोल सकते हैं कि डिसाइडेड है कौन सा कंट्री कब करने वाला है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं वी शुड नो अबाउट G20 एज अ फंक्शनिंग ग्रुप ऑफ इंडिया एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स more delays on data protection bill. Panel finalized a draft report last year, but it wasn't circulated to the members. Now, what is this? So, a joint parliamentary meeting has happened a long time ago to discuss about the personal protection data bill. ठीक है, personal protection data bill, टू डिस्कस अबाउट द पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा बिल। एंड ये बिल जो है 2019 में रिलीज़ किया लाया गया था लोगों के सामने, बट अब तक इस बिल के रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन या प्रॉपर कंक्लूडिंग फाइनलाइज नहीं हुआ है। एंड गवर्नमेंट या फिर ये जो पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया है 15 एंड 16 सितंबर जो है, दिस 2 डेट्स में दे विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट दिस जो भी पेंडिंग है, एंड दे विल कम टू अ कंक्लूडिंग लाइन. So, the panel finalized the draft report last year, but it wasn't circulated among the members. The agenda paper circulated ahead of the last meeting brings the panel back to a square one, because now they again have to start from the square one. क्योंकि members के बीच में गया ही नहीं, तो members के बीच में discussions हुए नहीं है, so they have to work from the scratch. 5 members, including the chairperson of the joint committee, जॉइंट कमेटी की चेयरमैन जो थी इनकी, दैट वाज मीनाक्षी लेखी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जुलाई, फॉलोइंग द पी चौधरी हु फॉर ओवर द ईयर इन 1670 सर्व्ड एज अ मिनिस्टर. उन्होंने ये प्रपोज किया कि हमारे पास ऐसा एक प्रोटेक्शन बिल होना चाहिए सो दैट इंडिविजुअल्स के लिए बेनिफिशियल हो. सो ये आर्टिकल में हम देखेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्शन बिल है क्या,
ठीक है, हमारे लिए थोड़ा सा जानना ज़रूरी था कि अभी तक पास नहीं हुआ या कौन से ईयर में लाया गया था, बट प्रॉपर बिल के बारे में हम जानते हैं. सो द ग्लोबल नेगोशिएशन टुडे रिवॉल्व्स अराउंड द डिबेट ऑफ ट्रांसफर एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा. ऑब्वियसली अगर हम बात करें जैसे कि आईटी टेक्नोलॉजी, जो आईटी का एक्ट लाया था, वो भी कहीं ना कहीं क्यों उसको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी और बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं वो चीज़ थी. सो जो पीडीपी है, सॉरी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2019 में लाया गया था, विच वॉज इंडियाज फर्स्ट अटेम्प्ट टू डोमेस्टिकली लेजिस्लेट द इशू ऑफ डेटा प्रोटेक्शन. डेटा प्रोटेक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बार इंडिया ने कोशिश की थी इन 2019 विद ब्रिंगिंग द बिल ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल. नाउ दिस बिल जो है, ये जो कमेटी है दैट वाज हेडेड बाय, उस टाइम पे जब रिलीज़ किया गया था, हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्ण. हाउएवर द बिल डिफर्स फ्रॉम व्हाट हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय श्री कृष्ण कमेटी. श्री कृष्ण कमेटी ने जब फर्स्ट टाइम लाया था और अभी जो बिल आया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ बोला जाता है. नाउ डेटा क्या होता है, बेसिक डेटा अगर मैं बोलूँ तो डेटा क्या होता है, डेटा इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर और इन अ नेटवर्क. ठीक है, डेटा जो भी कलेक्ट किया जाता है एंड हैंडल किया जाता है उसे हम बोलते हैं डेटा फ्यूडिशरीज. ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है उसके थ्रू. एंड उसके बाद हम देखेंगे अबाउट कुछ डेटा प्रिंसिपल्स, या हम बोल सकते हैं की डेफिनेशंस ऑफ डेटा जो है. एन इंडिविजुअल हुज डेटा हैज बीन स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड इज कॉल्ड डेटा प्रिंसिपल. मतलब पीडीपी बिल है, पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा, उसमें डेटा प्रिंसिपल का एक टर्म दिया है जिसका एक्चुअल मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन अगर आप स्टोर करके प्रोसेस करते हो एक इंडिविजुअल का, तो दैट इज मीन डेटा पर्सनल्स, डेटा प्रिंसिपल. सो एक डेटा प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट टर्म दिया है डेटा फिड्यूशनरीज. डेटा फिड्यूशनरीज जैसे मैंने आपको बताया, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो डेटा फिड्यूशनरीज में आता है. देन एक टर्म दिया है पीडीपी बिल में, दैट इज डेटा ट्रांसफ़र. सो डेटा ट्रांसफ़र मतलब जब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या डेटा एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो दैट इज डेटा ट्रांसफ़र. एंड डेटा लोकलाइजेशन, तो डेटा लोकलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है कि विद इन कंट्री में ही जब कोई इंफॉर्मेशन डिवाइस के थ्रू इंफॉर्मेशन प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डेटा लोकलाइजेशन. नाउ व्हाट डज दिस बिल प्रपोज? डेटा प्रोटेक्शन बिल बता क्या रहा है या क्या चीज़ प्रपोज कर रहा है? So it requires all the fiduciaries to store a copy of all the personal data in India, which was criticized by the foreign technology companies that store most of the India's data abroad. ठीक है, तो बेसिक अगर पीडीपी की बात करें तो ये लाना क्यों चाहते थे, वो ये बोलना चाहते थे अकॉर्डिंग टू द बिल कि दे विल ट्राई टू सिक्योर और दे विल ट्राई टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रॉपर उनका डेटा सिक्योर करना चाहते थे, जो कि क्रिटिसाइज़ किया जाता था फॉरेन गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो काम हमारा मतलब जैसे कि इफ़ से जो बहुत सारे कंपनीज़ हैं इंडिया में, दे आर फॉरेन कंपनीज, तो उनके पास भी हमारा डेटा सेव रहता है. सो द बिल ट्राइफिकेट्स डेटा एज फॉलोज. तो डेटा को मतलब बिल को हमने देखा था पर्सनल डेटा, डेटा एलोकेशन, लोकलाइजेशन के बेसिस पे वाइफरकेट किया गया था. सो ये बिल के एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं, सो एडवांटेजेस, डेटा कैन हेल्प लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू एक्सेस द डेटाज फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड एनफोर्समेंट. सो इन्वेस्टिगेशन के लिए काम होगा बिकॉज योर ओरिजिनल और प्रॉपर डेटा विल बी स्टोर्ड विद देम. ठीक है, उसके बाद जो साइबर अटैक्स और सर्विलेंसेस पे चेक रह सकते हैं, साइबर अटैक्स. देन उसके बाद अगर मैं जैसे कि पेगासस वाला सिचुएशन अभी चल रहा है, तो ये चीज़ माना जाता है कि अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारे पास रहता तो ये चीज़ हम पहले ही रोक पाते. ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस पे आते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं. मैनी कंटेंट दैट फिजिकल लोकेशन ऑफ द डेटा इज नॉट रेलेवेंट इन दी साइबर वर्ल्ड. ऐसा बोला जाता है कि जब साइबर क्राइमिंग या साइबर के मतलब
के रिलेटेड साइबर वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कितने बार जो फिजिकल डेटा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फिजिकल डेटा बिना ना भी रहने के बाद भी वो लोग साइबर अटैक कर सकते हैं। तो इस डेटा का फ़ायदा क्या है, तो वो एक डिसएडवांटेज में उन्होंने बताया है। देन नेशनल सिक्योरिटी ऑन रीजनेबल पर्सनस लाइक ओपन हैंडेड टर्म, जैसे कि हमारा सिटीजन्स अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो अगर किसी सिटीज़न की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, आप स्टोर तो कर रहे हो, बट क्या अश्योरिटी है कि वो कहीं लीक नहीं होगा, उसको कहीं गलत तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा। सो ये कुछ कुछ हम बोल सकते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस बताएं अबाउट द डेटा प्रोटेक्शन बिल। नाउ लेट्स सी 15 एंड 16 सितंबर को इसके रिलेटेड डिस्कशन होने वाला है कि ये बिल पास होगा कि नहीं होगा। तो तब जब पास होगा देन अगेन न्यूज़ में आ ही जाएगा। चलिए, विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स ओडिशा passes bill keeping reservations of seats at 50%। ठीक है, ये न्यूज़ अगर मैं बात करूँ, सो ये बिल, ये जो न्यूज़ है इट इज़ रिलेटेड टू ओडिशाज वी कैन से म्यूनसिपल देन कॉरपोरेशन। हुआ क्या है, तो जो इनके जो उड़ीसा के जो म्यूनसिपल बिल्स थे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो बिल्स थे उसमें चेंजेस लाया है सो दैट दे कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट 50%। ठीक है, सो ओडिशा असेंबलीज ऑन ट्यूसडे पास्ड एन ओडिशा म्यूनसिपल लॉ अमेंडमेंट बिल ऑफ 2021। सो ओडिशा म्यूनसिपल लॉ बिल ऑफ 2021 एक पास किया है अमेंडेड, सो दैट दे कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन एट 50%। ठीक है, सो दैट मतलब जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, जो वो इलेक्शंस करते हैं उसमें 50% रिजर्वेशन मिल सके सिटीजन्स को। ठीक है, देन द नवीन पटनायक गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड अ बिल विद द अमेंडमेंट प्रपोज्ड इन ओडिशा म्यूनसिपल एक्ट 1950। तो ये जो बिल अमेंड हुआ है ये हमारा जो ओरिजिनल ओडिशा म्यूनसिपल एक्ट 1950 का है बिल, उसको अमेंड किया है, 1950 के बिल को अमेंड किया है। और दूसरा अमेंडमेंट उसके साथ किया है ओडिशा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 2003। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि 1950 का बिल और 2003 के बिल को अमेंड करके ये एक बिल लाया गया है। द ओडिशा पंचायत लॉ बिल 2021 विल सीक अमेंडमेंट टू। तो अब जितने भी अमेंडमेंट्स किए हैं वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अगेन आई विल टेल यू। तो ये जो अमेंडमेंट है जो अभी बताया गया था ओडिशा म्यूनसिपल लॉ, वो हमारा जो है प्रॉपर 1950 और 2003 को अमेंड करके ये नया लाया है बिल। उसके बाद और एक अमेंडमेंट लाया दैट इज़ ओडिशा पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल। तो ओडिशा पंचायत लॉ अमेंडमेंट बिल जो है वो ओडिशा ग्राम पंचायत एक्ट ऑफ 1964 के जगह पे लाया है, अमेंड किया है इसको 1964 के बिल को। देन ओडिशा पंचायत समिति एक्ट, ठीक है, और ओडिशा ज़िला परिषद एक्ट, ठीक है, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 के बिल के अगेंस्ट। ठीक है, तो 3 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़, ताकि इनकी फंक्शनिंग में रिजर्वेशन की फैसिलिटीज़ हम लोगों को दे सकें। While elections to the urban local bodies are long overdue, the tenure of the person's 3-tier Panchayat Raj institution is coming to an end next year। ठीक है, नेक्स्ट ईयर मतलब उनके द नेक्स्ट ईयर अर्बन बॉडीज़ का इलेक्शन होने वाला है वापस से। सो बिफोर दैट इलेक्शन वो लोग प्रॉपर ऐसे चेंजेस लाना चाहते थे सो दैट लोगों को मौका मिल सके। In 2003, Odisha government passed an order stating that upper ceiling limits of reservations of seats for SC, ST and backward shouldn't exist 50% in accordance to the judgment। कृष्णमूर्ति केस के जजमेंट के हिसाब से बोला गया था कि अगर आप उनको रिजर्वेशंस भी दे रहे हो तो इट शुड नॉट एग्जिस्ट 50% ऑफ इट्स। स्टेट गवर्नमेंट हैड मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट थ्रू अ स्पेशल लीव पिटीशन एंड थ्रू अ फ्यू पिटीशन चैलेंजिंग, जिसकी वजह से उन्होंने प्रॉपर 50% का रिजर्वेशन उनको प्रोवाइड किया है। सो वहाँ के जो लॉ मिनिस्टर है मिस्टर प्रताप जेना, उनका भी ये बोलना है कि गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं था बट टू अमेंड दिस बिल सो दैट अर्बन बॉडीज़ में उन लोग को भी मौका दिया जा सके। सो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए जानना ज़रूरी है कौन से बिल को अमेंड किया गया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
Next article states that decoding assets monetization. डिकोडिंग असेट मोनेटाइजेशन में आपको एक नया हम बोल सकते हैं मॉडल के बारे में बताया है, विच इज़ नोन एज द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. आप इसको सिंपली अगर समझने के लिए आप लोग ने इकोनॉमिक्स में एक टर्म सुना होगा, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो लोगों ने कहीं ना कहीं मतलब जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वर्किंग होती है वैसी ही वर्किंग हमारे नेशनल मिशन पाइपलाइन की भी है, बट इसके फीचर्स दे आर वेरी डिफरेंट एज कंपेयर टू पीपीपी. इनके दोनों के फीचर्स आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, बट फंक्शन उनका यही है सो दैट डेवलपमेंट ला सके इंफ्रास्ट्रक्चर में. सो ये नया पाइप जो मॉडल आया है उसके बारे में बताया है. सबसे पहले इट इज स्टेटिंग अबाउट द कंपैरिजन विद पीपीपी मॉडल. कंपैरिजन विद पीपीपी की मॉडल की अगर मैं बात करूं तो उनका ये बोलना है जैसे कि पीपीपी में आपको मतलब कैसा होता है कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र का सिस्टम होता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी बिल्ड करेगा, उसको कुछ साल तक ऑपरेट करेगा एंड देन दे विल ट्रांसफ़र इट टू गवर्नमेंट. ठीक है, बीओटी का फंक्शन चलता है पीपीपी में. बट फिर उसके बाद उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है लैंड एक्विजिएशन. गवर्नमेंट को लैंड खरीद के देना पड़ता है जिसपे वो लोग बिल्ड करके ऑपरेट करके ट्रांसफ़र करेंगे. बट एनएमपी में वैसा नहीं है. एनएमपी में कैसा है, प्रॉपर आपको लैंड एक्विजिएशन का झंझट मारी नहीं रहता है. इसमें सिर्फ इतना होता है कि दे विल वर्क ऑन इट एंड दे विल गिव यू आफ्टर द प्रॉपर डेवलपमेंट. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि एनएमपी में है क्या, कितने साल की फंक्शनिंग है. सो द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एस्टिमेट्स द एग्रीगेट मोनेटाइजेशंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ 6 लाख करोड़. 6 लाख करोड़ का ऐसा मतलब एस्टिमेशंस दिया है इसका फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 4 years फ्रॉम 2022 टू 25. 4 years का एस्टिमेशन 6 लाख करोड़ दिया है. द प्लान इज अ लाइन विद प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अंडर विच गवर्नमेंट विल ट्राई टू रिटेन द प्रेजेंस ओनली बाय फ्यू आइडेंटिकल एरियाज. ठीक है, तो उसमें कैसे होता है कि ओनरशिप जो है, हम ये नहीं बोलेंगे कि प्राइवेट्स को हमने ओनरशिप दिया है. प्राइवेट्स को ओनरशिप नहीं देते हम इसमें, उनको सिर्फ फंक्शनिंग के लिए देते हैं. सो इट एम्स, प्रॉपर एम्स या की पॉइंट अगर हम बात करें पहले, सो इट एम्स टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट. ब्राउन फील्ड इज द रोड बोल सकते हैं या फिर हमारा मेन फील्ड प्रोजेक्ट जो है, एंगेजिंग द प्राइवेट सेक्टर, ट्रांसफरिंग टू देम द रेवेन्यू राइट्स एंड नॉट द ओनरशिप इन द प्रोजेक्ट. ओनरशिप उनको नहीं दिया जाता है. ठीक है, एंड यूजिंग दिस फंड्स जनरेटेड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग अक्रॉस दी कंट्रीज. सो ओनरशिप का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ओनरशिप उनको नहीं दिया जाता है. देन द एनएमपी has been announced to provide a clear framework for monetization and give a potential investor a list of assets. तो हमारा जो यूनियन मिनिस्टर बजट 2021-22 आएगा, जो आया था, दे विल आइडेंटिफाई, सॉरी आएगा, आया नहीं है, दे विल आइडेंटिफाई मोनेटाइजेशन ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स एज अ की ऑफ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. करेंटली अगर हम बात करें हमारे पास ओनली असेट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन अगर देखें तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टर ये एंटरप्राइज है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं. और यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर आता है दैट इज़ रिस्किंग. पीपीपी में ये बोला जाता है कि व्हेन इट कम्स टू लैंड एक्विजिएशन, व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट, हर जगह पे रिस्क होता है. ठीक है, यहाँ पे एक एश्योरिटी दिया है कि दे आर डी रिस्किंग यू फ्रॉम द फैक्ट ऑफ रिस्किंग. मतलब आपको कहीं पे भी ये डर नहीं रहेगा कि अगर लॉस हुआ तो यू हैव टू फेस इट. तो वैसे प्रोविजंस बनाए हैं सो दैट द रिस्क फैक्टर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट. रोड, रेलवे, पावर सेक्टर assets will comprise over 66% ऑफ द टोटल एस्टिमेशन. मेजर वर्किंग्स जो हैं उनकी इसी पे होने वाली है. Then it will run a co-terminus with 100 lakh crore announced in 2019. So proper working जो है इसकी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी जिसमें कि they will have a proper partnership हम बोल सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के साथ. प्राइवेट सेक्टर्स को encouragement किया जाएगा because they will get the investment. They have to work on it. They are not the owners of that place. They have just to operate it. ठीक है, so it is way different from the
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये चीज़ आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट। नाउ विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्चेज अ कोर्स टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। सो दिल्ली गवर्नमेंट मतलब हमारे जो डेप्यूटी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने ट्यूसडे को ये चीज़ बोला कि दे आर लॉन्चिंग अ प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लाया है, जिसमें कि दे विल गिव स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th को दे विल गिव 2000 रुपीज़ ऑफ सीड मनी, ठीक है, सो दैट दे कैन डेवलप अ प्रॉपर एंटरप्रेनल माइंडशिप। ठीक है, प्रॉपर मतलब एंटरप्रेनल माइंडशिप आप बोल सकते हैं, या मतलब बीइंग अ एंटरप्रेनर, बीइंग उनका उस हिसाब का माइंडसेट बन सके, सो दैट कि कहीं ना कहीं उनका टैलेंट बाहर आएगा इस प्रोग्राम के थ्रू। सो इन एन efforts aimed at helping the youth acquired by the business skills, Deputy CM Manish Sisodia on Tuesday launched a business blaster program for the Delhi government students of class 11th and 12th. सो ये प्रोग्राम जो है ये मतलब पहले वहाँ पे प्रॉपर दिल्ली में एग्जामिन किया जाएगा कि इट्स फंक्शनिंग कैसे हो रही है, नहीं हो रही है। स्पीकिंग ऑफ दिस ओकेजन अगर हम बात करें, इसमें कैसा होगा कि दिस मतलब ये चीज़ एस्टिमेट किया जाता है कि अगर ये प्रोग्राम अच्छे से चल पाया तो द सिचुएशन और द डे इज़ नॉट फार कि जब यूथ खुद से अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, so Sisodia, who is in Delhi education minister, said country does not have enough job for the youth who have completed their education, and so government will organize this program at all the levels. So under this program बच्चों को proper entrepreneurial skills सिखाया जाएगा, competitions held किया जाएगा state and मतलब स्टेट नहीं, डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट लेवल्स पे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सके, अपने स्किल्स बता सके। एंड टोटल ऑफ 1000 चिल्ड्रंस को ये मौका दिया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे, तो दे विल बी सिलेक्टेड एंड उनको प्रॉपर डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा हमारा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में फॉर वुमेंस का उसमें दिया जाएगा। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा, और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब में उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा। आई रिपीट, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, then Guru Gobind Singh Indraprasth University and नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब में उनको डायरेक्ट एडमिशन दिया जाएगा इफ़ दे क्वालिफाई दैट कॉम्पिटिशन। सो द बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड एट द स्कूल ऑफ एक्सेलेंस इन खिचरीपुर। ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर जो है खिचरीपुर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, and its purpose was to inculcate the belief that children's whatever work they should do it in an entrepreneurial mindset. In this projects 9 group of 41 children were formed, जब फर्स्ट टाइम किया गया था इसमें। सो प्रॉपर ऐसे ग्रुप बना के दे गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट एंड इट प्रूव टू बी एन सक्सेसफुल इनिशिएटिव। सो इसकी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि दे विल वर्क ऑन दिस एंड होप सो कितना चेंजेस इसमें आता है। So that's for today. I hope you like the channel. If you like the video, do like and subscribe the channel. Thank you so much.